Hello friends, welcome back to my YouTube channel Physical Education Adda. I hope you all are safe in this time. So guys, today I prepared a part 3 of BPED mock test which includes every important parts of BPED entrance exams such as English, GK, sports, current affairs and reasoning. So guys, please like my videos and subscribe my channel for regular updates. Thank you. So let's start the video of mock test. So here it goes. So let's start. First question is of reasoning. Time is going 9, 8, 7, 6. You need to solve it. I will not tell you the answers of reasoning questions. You solve the answers of this question and comment in the comment box. Come on guys, be fast. Let me tell you, the correct answer of this question is option number D, 24. You solve it and check your answers. If you want to really test yourself, then you can mute the sound of this video. I am not marking the answers in the video. You can mute the video and solve it in a rough copy and comment me what was your score out of 45. So let's move on to the question number 2. Theme of WHO World Health Organization 2020: stay home, build smart, stay healthy, support nurses and midwives, we together, fight together, one man can do many things. Guys, be fast, your time is up. चलिए अब इसका आंसर बता देता हूँ आपको. इसका थीम था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स. इसका थीम हेल्थ डे के दिन रखा गया था 7 अप्रैल को, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. विच स्टेट हैज़ अनवील्ड अ 5T प्लान टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? Which state has unveiled a 5T plan to fight against COVID-19? 3T प्लान एक कंट्री लाया था. 3T, ध्यान से सुनिएगा इस बात को. 3T प्लान लाया था साउथ कोरिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. वैसे ही अपने इंडिया में भी इसी को देख के दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 5T प्लान लाया. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली. आ गया फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन. चलिए करिए सॉल्व. इफ़ मैटर इज रिटन एज टेमरेट देन हाउ विल बियॉन्ड बी रिटन? देखिए आपका टाइम साइड में चल रहा है. 17, 17, 15, 14, 13. चलिए चलिए सॉल्व गाइस, फास्ट, बी फास्ट. The correct answer of this question is option number D, YEBDNO. You can solve it. Again I am telling you, if you really want to take advantage of this paper or of this video, you can mute the sound of this video and try to solve all the 45 questions. Then again watch the video with sound and check your answers. So let's move on to question number 5. Who is the chief executive officer of Vivo? Come on guys, be fast, I am giving you time. The correct answer of this question is option number B, Shen Wei. The correct answer of this question is Shen Wei.
ऑप्शन नंबर ए है अभी डाबली नीमूचवाला जो कि वाइप्रो के सीईओ हैं। ऑप्शन नंबर सी है टीम कुक जो कि आप सभी जानते होंगे एप्पल के सीईओ हैं। और ऑप्शन नंबर डी है लाई जून जो ओप्पो के सीईओ ओप्पो। तो करेक्ट आंसर ऑफ सीईओ ऑफ वीवो इज ऑप्शन नंबर बी शेन वाई। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट नॉट टू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट। कन्फ्यूज़न होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन एलिजिबल। अगर आप कोई पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो तो नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट होगा। इसका डिसक्वालीफाई नहीं होगा आंसर, ना ही इम्प्रॉपर होगा ना ही फेल्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ इन एलिजिबल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आरोग्य मित्रा। कौन सी राज्य सरकार ने आरोग्य मित्रा ऐप लॉन्च की है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है। इसी क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च आरोग्य मित्रा ऐप। चलिए गाइस, टाइम इज रनिंग अप। 5 4 3 2 टाइम्स अप गाइस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी यूपी। योगी आदित्यनाथ is the CM of UP who has launched Arogya Mitra app. And let me also tell you, UP was the first state which made it compulsory for its citizens who live in the contaminant zone to install Arogya Setu app. UP was the first state to introduce this. So let's move on to question number 8. हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स। आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए टाइम दूंगा आपको मैं एक्स्ट्रा, इसके लिए सॉल्व करिए। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं वैसे। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2। नेशनल सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम विच बुक ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। सॉरी, यहाँ मिस प्रिंट हो गया, चार्टर्ड लिखा गया है चटर्जी की जगह। बंकिम का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। नेशनल सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम विच बुक ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइज। आप सभी को तो ये पता होगा कि नेशनल सॉन्ग लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, लेकिन उनके कौन से बुक से लिया गया ये आपको भी पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ। मानस नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। मानस नेशनल पार्क। गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी गुजरात। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी USA, Mexico, Canada. Who is the head of FIH or who has been reappointed as the head of FIH? Reappointed may also be asked. The correct answer is option number D, Narinder Dhruv Batra. Recently, Narinder Dhruv Batra has been reappointed as the head of FIH, Indian Hockey Federation. Which bank is called Bankers Bank?
Which bank is called Bankers Bank? Indian Bank, PNB, Punjab National Bank, State Bank of India, Reserve Bank of India. The correct answer of this question is option number D, Reserve Bank of India. Come on guys, be fast. We have got enough time to solve this reasoning question. Time is running. On the right side of the screen, right top of the screen. Come on guys, be fast. Let me tell you, the correct answer of this question will be option number A, 35. Again, one reasoning question. Solve it. You can read it and solve. The correct answer of this question will be, you will comment in the comment box. I'm not going to tell you the answer. Let's move on to question number 16. Again, reasoning question, guys. Solve it fast. Very easy question. Again, you need to comment in the comment box and give me the answer of this question also, because you need to also show some interest towards my videos by commenting in the comment box. Let's move on to question number 17. Who is the president of Afghanistan? The correct answer is times up. मोहम्मद सलमान तो नहीं होगा, यूएई का किंग है वो। मोहम्मद यूसुफ नहीं है, कोई कुरैशी जिन्ना कोई नाम ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अशरफ गानी को अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। विच गैस इज़ प्रेजेंट मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर? सॉरी गाइस, वहाँ पे हैस लिखा गया, गैस की जगह गलती से मिसप्रिंट हो गया है। विच हैस की जगह गैस लगा दीजिएगा। विच गैस इज प्रेजेंट मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19, माई फादर, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का। माई फादर हैज़ डैश रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। विल, देखिए अब आपको मैं समझा दूँ। माई फादर हैज़ के साथ तो विल कभी आता नहीं है। विल रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, विल हो ही नहीं सकता। माई फादर नाउ हैज़ नाउ रिटर्न, फिट नहीं बैठ रहा है। माई फादर हैज़ जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, फिट तो बैठ रहा है। माई फादर, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। माई फादर तो ऑलरेडी रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, ये भी नहीं बैठ रहा है, फिट हो भी नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माई फादर हैज़ जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Who designed a fully disinfection chamber? Who designed a fully disinfection chamber? कोरोना वायरस के लिए डिसइंफेक्शन चैम्बर बनाया गया था। ये बनाया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, हियर इट गोस। एंटोनियम ऑफ कन्फेस। एंटोनियम, पहले आपको मैं ये बता दूं एंटोनियम मतलब क्या होता है। एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, अपोजिट। कन्फेस का मतलब क्या होता है?
टू एक्सेप्ट समथिंग। कन्फेस का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट समथिंग। तो चलिए उसका एंटोनियम क्या होगा, एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना। तो करेक्ट आंसर इसका एंटोनियम ऑफ कन्फेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिनाई। डिनाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने अस्वीकार किया। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एंटोनियम, डिनाई हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एंटोनियम ऑफ लेटेंट। लेटेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओवियस, स्पष्ट। इसका मतलब होता है लेटेंट का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब क्या होता है, ओवियस। कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर डी नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आईसीसी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और एक चीज़ बता दूँ, आईसीसी का पुराना नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था इसका पुराना नाम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909। आईसीसी वॉज फाउंडेड इन 1909। विच गैस इज filled in tube of an aeroplane, radon, helium, neon, argon? Be fast guys. The correct answer of this question is option number C, neon gas is filled in the tube of an aeroplane. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आ गया आपका फिर से रीजनिंग का क्वेश्चंस। आपको सफिशिएंट टाइम है, 40 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व करिए। आखिर के 5 सेकंड में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। बी फास्ट, आई एम वेटिंग। The correct answer of this question will be option number C. Which Indian state has longest coastline? कौन सा स्टेट का सबसे ज़्यादा समुद्री तट से जुड़ा हुआ है? और आई थिंक 1217 किलोमीटर्स is attached with the coastline of Gujarat state. Option number B is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं अब। द BCCI हैड डिसाइडेड टू पोस्टपोन, डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडेड हो जाएगा, हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द IPL 2020 विच इज़ द डैश एडिशन ऑफ IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। तो लेट मी टेल यू, दिस वाज द 13th एडिशन ऑफ IPL। इसका ऑप्शन हो चुका था, पर कोविड-19 चलते IPL हो नहीं पा रहा है अभी। इसका लेटेस्ट डेट्स अभी तक नहीं आए हैं। श्रीलंका ने इसको होस्ट करने की पहली बार बात की थी, फिर सऊदी अरेबिया जब भी इसको होस्ट करने के लिए तैयार था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गेम चेंजर? गेम चेंजर के ऑथर कौन हैं? गेम चेंजर बुक के ऑथर कौन है? ऐसा तो लिखा है गेम चेंजर, पर वो कभी तो गेम चेंज करते हुए दिखे नहीं, ना अपनी टीम को जिता पाए। तो क्वेश्चन नंबर बी आंसर नंबर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहिद अफरीदी। बुक तो लिख दिए गेम चेंजर, पर मैंने तो नहीं देखा उनको अभी तक टीवी में गेम चेंज करते हुए और अपनी टीम को जीत दिला सके। शाहिद अफरीदी। Again, the reasoning question. A lady while introducing a man says his wife is mother's
is my mother only daughter. What is the relationship between the lady and man? Five, four, three, two, one. Time's up. The correct answer of this question is option number C, wife and husband. The best way to enhance your skill in reasoning is to practice and practice and practice. You can comment in the comment box how this video is. If you not comment, how could I get promoted to make more such videos? Synonym of admonish. Synonym of admonish. एडमोनिश का मतलब क्या था पता है? चेतावनी देना, किसी को चेतावनी देना, मतलब टू वार्न समवन। तो टू वार्न समवन मतलब कि चेतावनी देना। डिस्कस नहीं हो सकता। टू मेक समवन फुल थ्रेटन जरूर हो सकता है। प्रशंसा के प्रेस क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रेस का मतलब होता था प्रशंसा करना। थ्रेटन मतलब क्या था? जो डराना। तो एडमोनिश का मतलब क्या होता है? टू वार्न समवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेटन। Again, reasoning question, guys. Be fast. You can pause the video and do it. Time is little bit less, so I need to move up further. The correct answer of this question is option number C, RIUF. RIUF. Option number C is the correct answer. Here it goes. Question number 32. A thing which is not fresh. A thing which is not fresh. फ्रेश मतलब क्या? जो चीज़ सड़ा हुआ हो, मतलब a thing which is not fresh. वर्स्ट मतलब ख़राब होता है, बैड नहीं हो सकता। सड़ा हुआ मतलब पेल नहीं हो सकता। स्टेल मतलब होता है सड़ा हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्टेल। पेल मत, ऑप्शन नंबर सी मत कर दीजिएगा। पेल इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उसमें दाग धब्बा होता है पेल का मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे ऑप्शंस को पहले पढ़ा करिए, फिर अच्छे से कंफर्म करके आंसर एक ही बार मार्क किया करिए OMR शीट में अपने एंट्रेंस के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स बिगेन एट शिमला, लेह, अंडमान, गुलमार्ग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, गुलमार्ग। इस साल फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था गुलमार्ग में। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। द राइज फ्रॉम देहरादून इज़ मोर सुपीरियर टू डैट ऑफ सहारनपुर, नो एरर। चलिए आंसर दीजिए इसका गाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। द राइज फ्रॉम देहरादून मतलब मोर सुपीरियर में से आपका मोर सुपीरियर गलत है। इसके जगह करेक्ट क्या करेंगे आप? मोर सुपीरियर है तो इस मोर को काट देंगे। द राइज फ्रॉम देहरादून इज़ मोर सुपीरियर, मोर तो नहीं आएगा। द आंसर ये हो जाएगा आपका, द राइज फ्रॉम देहरादून इज़ सुपीरियर टू दैट सहारनपुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 हैज़ बीन अवार्डेड टू स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली। बी फास्ट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रोहित शर्मा। Recently, Rohit Sharma has been nominated for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award by BCCI, Board of Control for Cricket in India. This was yesterday news. So guys, this question can also be asked in your exams. Rohit Sharma is the only Indian cricketer to be nominated for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020. Let's move on to question number 36. Who wrote book India Wins Freedom?
हु रोट बुक इंडिया विंस फ्रीडम? The correct answer of this question is option number A, Abdul Kalam Azad. Who is the chairman of National Development Council? Who is the chairman of National Development Council? चलिए बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है मिसलिनियस के ऊपर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। Who is the chairman of National Development Council? The correct answer of this question will be option number C, Prime Minister of India is the chairman of National Development Council. क्वेश्चन नंबर 38, फेमस सरोद प्लेयर अली अकबर खां हैं कि निखिल बैनर्जी? बिस्मिल्लाह खान तो नहीं हो सकते, शहनाई बजाते हैं। अमजद अली खां ज़रूर हो सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करिए। The correct answer of this question is option number 3, C, QRS। आप सॉल्व करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। Which one is correct spelling? Which one is correct spelling? HUMOROUS नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी शायद हो सकता है। सी और डी चेक कर लेते हैं। डी तो हो ही नहीं सकता। सी भी गलत दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, HUMROUS। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 41, हियर इट गोज। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? कौन से टाइप का टिश्यू है? एपिथेलियल, साइनिव, कनेक्टिव कि नर्व टिश्यू है? तो बता दो आपको, ब्लड एक कनेक्टिव टाइप टिश्यू है, ब्लड वेसल्स को जोड़ता है। ओहो, इंग्लिश क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। इफ हियर्स नहीं, इफ ही डैश ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज्ड। आपको मैं बता दूँ इसका आंसर कैसे पता करेंगे। इफ़ ही, ये क्या है? इफ़ ही हियर्स होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ ही हियर्स ऑफ योर मैरिज, तो क्या होगा आगे? इफ़ मैं आपकी बात शादी के बारे में सुन लूँगा तो क्या होगा? ही विल बी सरप्राइज्ड। जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ड यूज़ करते हैं, और इसमें है ऑप्शन नंबर ए, इफ़ ही हियर्स ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज्ड। अगर शादी के बारे में सुनेंगे तभी तो सरप्राइज होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस ऐसे बनता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एडजेक्टिव ऑफ ग्लूम। एडजेक्टिव पहचानने का तरीका, अगर क्वेश्चन के आखिरी में एबल, आइबल, वाई, OUS, अस, लाइक, ये सब अगर क्वेश्चन के लास्ट में जुड़ा हो, देख सकते हैं इसमें वाई जुड़ा है ना, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ग्लूमी। वाई जुड़ा है मतलब यही एडजेक्टिव है। बिना कुछ सोचे समझे आप ऑप्शन नंबर सी पे लगा दीजिएगा, जिसमें वाई, एबल आखिरी में, आइबल, वाई, अस, लाइक जुड़ा हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? गाइस बी फास्ट, बता दूँ आपको, इसका आंसर होगा मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर। लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? धीरू भाई अंबानी, बिरला, जमशेदजी टाटा, नवीन जिंदल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी,
Jamshedji Tata. So here video is over, guys. So thank you for watching this video, and do like and subscribe my channel if you like my videos. So thank you, guys.